अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम लोग को बेसब्री से इंतजार था। और मैं अब कॉल करना चाहूँगा मिस्टर इमैनुअल को। मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा और जो लोगों को भी कुछ भी क्वेश्चन है तो उनसे डायरेक्टली आप लोग पूछेंगे। So, Mr. Emmanuel, thank you so much for joining this meeting. We are very curious to learn something from you. So, are you there? Okay, thank you, Sean. Can you hear me now? Yeah, I hear you. Thank you so much for joining this meeting. Thank you very much. Thank you very much. Our whole community are very curious to listen you something from your side. What's going on this company? So today we are very lucky that you have here. So please tell us something about this company, what's going on and what's the future of this company. So please. Okay. And after that, again, we will conduct question and answer sessions. So before starting question and answer session, we need some motivation from your side. We are very curious for that. Okay, thank you, Sean, very much. Thank you very much once again. And a special shout out to everyone who is on this call tonight. It's a very prestigious opportunity to be a part of you tonight. And I'm very much excited and glad that you are a part of this revolution going on within the financial institution. First of all, I believe that most of us are aware of financial activities, economic activities that have been going on all over the world. And having a review of this, I want to tell each and every one of you who is on this call tonight, you are on course. You are on course. You have come into the cryptocurrency ecosystem, and in particular, the Ozone Chain ecosystem on time. Yeah, we can see what is going on in the centralized or the traditional banking ecosystem within the world. Just a few days ago, we heard about the insolvency of the Silicon Valley Bank. I think earlier this morning, we also heard about how regulators in New York have shut down the Signature Bank and a whole lot of other economic disasters across the world. And a good thing, cryptocurrency and decentralized finance, which Ozone Chain is a major player in, is coming to the rescue of the world. It's coming to the rescue of the world. So if financial, we can see that traditional financial institutions, centralized banking cannot be trusted, cannot be trusted. And if some of you are looking at the market currently, you're going to see a reflection of what is happening in the world in the cryptocurrency ecosystem, because people are beginning to understand to a great extent that the solution to financial freedom is within the cryptocurrency ecosystem. And I can assure you that Ozone Chain is setting itself up to be a major player in this ecosystem. As some of you already know, we have the most updated blockchain within the cryptocurrency ecosystem, a blockchain that is 5th generation and supports Web3 applications. So I want to once again congratulate you very much. I'm excited for you. I'm excited for you that you are a part of the cryptocurrency ecosystem, and not just that, in particularly a part of the Ozone Chain ecosystem at such a time as this. I want you to fasten up your seatbelt. A lot is coming on board. A lot is coming on board, and a lot of us are going to be major partakers in these new innovations and coming about what is going on with our company, the Ozone Chain ecosystem. There are a lot of
activities going on. Firstly, our programmers, to a great extent, have been sending us some good news about the innovative products they are making available. Like I shared on my Facebook a few days back, most of our Web3 support applications within the crypto Zone Chain ecosystem are undergoing currently technical testings and all of that. So we have a lot of innovations that are coming in very soon. I think most of them currently are awaiting announcement dates of release and all of that. So tonight I will be here to answer whatever question you might have as regarding the Ozone Chain ecosystem, as regarding our Meta Ozone proof of stake mining program. I will be listening to your questions, but before I go to that, okay, after that, I will make some few announcements. I will make some few announcements as regarding few activities within our ecosystem. So right now, I will be expecting your questions. If anyone, I can see some people raising up their hands. So Sean, I would like you to help me moderate and get their questions across so that I can attend to them immediately. Thank you very much. Yeah, thank you so much, Emmanuel. I'm just connecting the people. Sanjay Singh, please ask your question. I'm just unmuting you. Good evening to everyone. Yeah, good evening, Sanjay Singh. How are you, sir? Very well, very well, very well. Hope you are same. Sir, my question is, okay. If blockchain should be safe, then how can I connect to other people, and I, with my side, how can I give him a faith? Okay, Sean, did you get him clear? Actually, संजय सिंह जी क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? एक्चुअली थोड़ा सा क्लियर कर दें. पूछना ये चाह रहे हैं कि अगर हम किसी पर्सन से अगर हम जा करके अगर बात कर रहे हैं और उनको अगर ब्लॉकचेन के बारे में, कभी कभी क्या हो रहा है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि ब्लॉकचेन से वो कहते हैं कि अगर ये इसका कोई अगर ऑनरशिप नहीं है, इफ एनीबॉडी इज नॉट ऑफ दिस ब्लॉकचेन ऑनरशिप, देन हाउ कैन इज माय मनी इज सेफ? ओके. या मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन का जवाब इमैनुअल ही दें. Yeah, Mr. Emmanuel is asking that some people doesn't trust on blockchain because nobody is the owner of blockchain. So how is this possible? This is safe. Okay, how is it possible the Ozone Chain blockchain is safe? He is asking about all the blockchain, not only for Ozone. Yes, of okay, course. all the other blockchain. My question is for all cryptocurrency. Okay. Or blockchain. Okay. Now let me clear your doubts. About this. One of the unique things you need to know about cryptocurrency ecosystem and the blockchain technology in quotes is its decentralized nature. The decentralized nature of the blockchain technology makes it that it's hard to hack the blockchain because there is no centralized server. This is connection of nodes and computers from different locations. For you to successfully hack a blockchain technology, that means you have to hack each of the computers that are connected to that particular blockchain. So what we are seeing now is a continuous adoption and advancement of this technology. Like I say, most of us right now are early adopters. So the cryptocurrency ecosystem, the blockchain technology in its entirety is safe because it is decentralized. It's safe because it's decentralized. So your money within this ecosystem is safe compared to the traditional ecosystem, the traditional banks,
where there are lots of manipulation, where there are lots of the influence of a few against the masses, and so on and so forth. So we have a better technology, which is the blockchain technology. And I can assure you, its decentralized nature makes it safe. You don't really have much to worry about. Okay, even if in some of the projects where there is likely some experience of hacking and all the rest of that, the people who perpetuate such activities do not go away with it, because there is always a digital footprint to everything that is happening within the cryptocurrency ecosystem, within the technology, the blockchain technology itself. So you're absolutely safe if you're dealing with the blockchain technology. Over time, since 2010, it has proven to be one of the safest financial technologies. And once again, I can reassure you, your money is safe within this ecosystem. And if you even look at our Ozone Chain blockchain, when Sean was making a presentation, you see that we have a 5-layer security apparatus. A 5-layer security apparatus. So the Ozone Chain blockchain is bringing security of its activities as one of its priorities. We have a top-notch security apparatus. Even when our SATIC was undergoing auditing our codes, part of the responses they gave to us is that, wow, they've not seen something as amazing as this. And that includes in its security and every other features. So what's the name again? I can assure you, Sanjay Singh, I can assure you that generally the blockchain ecosystem is safe for our activities. Thank you very much. Thank you very much. Okay, sir. Okay, thank you. Thank you so much. You're welcome. आई थिंक आपका आंसर मिल चुका है संजय जी। मिला है। एक क्वेश्चन मेरा और था, लेकिन मैं देखता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम, चूंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया जो ये लाया, रेगुलेशन जो लाया है, नया राजपत्र जो लाया है, उस विषय में मैं थोड़ा मैं देखता हूँ। मैं अभी जो इंडियन और मैं देखता हूँ, फिर मैं आपसे इसमें था अभी का जो या न्यूज़ अगर आप, मैं थोड़ा सा इफ यू आर क्लैरिफाई कंफर्टेबल देन यू कैन। जी, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। एक्चुअल में हम्म। अभी का जो गवर्नमेंट के जो नियम्स आए हैं ना, वो बहुत ही पॉजिटिव आया है। क्योंकि देखा ये जा रहा था कि आखिर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करे तो कहाँ पे करे, कौन से सेक्टर में करे, बैंकिंग सेक्टर में करें या उसे फॉरेन सेक्टर में करे, किस में करे। तो उसके लिए इन्होंने सेक्टर तलाश कर लिया है। वो उन्होंने कर दिया है इस सेक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, यानी उस सेक्टर में इन्होंने पीएमएलए में ला दिया। तो एक सेक्टर मिल गया। दैट मीन्स कि हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो गई कि हमें एक सेक्टर तो मिला जहां से कुछ रेगुलेशन होगी। जब रेगुलेशन होंगी तो ऑब्वियसली कल के डेट में लाइसेंसिंग भी होगी। जब कल के डेट में जब लाइसेंसिंग हो जाएगी तो सोचे कहाँ से कहाँ क्रिप्टो करेंसी चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ये स्टेप रहा है। और इसके पीछे बहुत बड़ी ये रही, जैसे G20 के जो बैठक वगैरह जो हुई थी, उन सब चीजों से मिल करके ये सारी चीजें क्लियर हुई है। तो बहुत ही बेटर ऑप्शन हो गया। G20 सब्मिट जो हुआ उसमें, उसके बाद ये छान करके आया हुआ है राजपत्र पे। बिल्कुल, तब से उस पर रिसर्च चल ही रहे हैं। तो अब ये हो गया कि अब हम लोग जो सोच रहे थे ना कि बैनिंग हो जाएगी, अब ये पार्ट खत्म हो गया। अब बैनिंग वाली नहीं, ये पार्ट तो खत्म हो गया। क्लियर हो गया। ये तो पॉजिटिव तो है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों का, खैर सॉरी, क्योंकि और भी बहुत पैनल सारे में लोगों लोग का हैं, क्लियर, इसके लिए बहुत सारे लोगों को बस ये कुछ भी सोचना नहीं है, एक्सचेंज पे जाए, केवाईसी करे, काम करे, कोई इश्यूज नहीं है। अभी बहुत सारे नियम कानून इनके बनने, अभी सिर्फ बताया गया है, अभी कानून बनेंगे, टाइम लगता है ये सब चीजें। तो ऐसे कुछ है नहीं, बहुत पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वे में ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। मेरे साथ हैं कमलेश विरा। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये, बाइनेंस में कब आएगा? अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है। और द्वितीय क्वेश्चन है मेरा, और कितना कॉइन बचा है? तो जैसा कि
आपको ऑलरेडी ये सब चीजें तो बताई जा चुकी है कि हमारे जो बाइनेंस की जो ये है हमारे नेक्स्ट क्वार्टर के नेक्स्ट क्वार्टर में है, नहीं अभी हमारा क्वार्टर में ये आया है बिटमार्ट, उसके बाद की जो क्वार्टर है उसमें आया है गेट डॉट आई हो, यानी कि जून वाले में गेट डॉट आई होगा, उसके बाद की जो क्वार्टर में होगी यानी सबसे लास्ट की जो क्वार्टर होगी उसमें बाइनेंस आ जाएगी। ठीक है जी। ठीक है। और जहां तक आपने कहा क्वाइन कितना बचा है, तो क्वाइन कितना बचा है इसकी अनाउंसमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है कि जैसे ही हमारा सर्टिक का लाइसेंस कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन आपको सारी चीजें दिखा दी जाएंगी। सर्टिक की वजह से होल्डर्स नहीं दिखाए जा रहे, तो जैसे ही दिख जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली बताने से नहीं बल्कि देख पाएंगे। ठीक है। मसलेहुद्दीन साहब, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। मेरे साथ है नूर साहब। फ्रेंड्स आप लोग डायरेक्टली केपोर से सवाल करें, मेरे से सवाल तो हर रोज कर ही सकते हैं। जो लोग केपोर से सवाल करना चाहते हैं वही हैंड रेज करें। हेलो Yeah, Yeah. thank you. You're welcome. सर, शान सर, मैं आपके जरिए से सर से पूछना चाहता हूँ जी जी। कि ये जो ब्लॉकचेन जो जो होता है वो तो लॉन्ग विजन के लिए होता है, तो उसका जो डोमेन होता है वो तो लंबा होना चाहिए ना, 5 साल का, तो ये 1 ही साल का क्यों रहता है? सर डोमेन जो भी रजिस्ट्रेशन करी जाती है वो जी 1 ईयर के लिए करी जा सकती है या 2 ईयर के लिए या 5 ईयर्स मैक्सिमम के लिए करी जा सकती है, राइट। तो वो ऑटो रिन्यूअल मोड में होता है। अच्छा हर तरह की कंपनीज होती है, तो जैसे आपने क्रेडिट कार्ड से डोमेन बाई करनी है तो ऑटो रिन्यूअल मोड में होता है, जैसे ही टाइम आ जाएगा ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाएगा, राइट। और मैं बताता हूँ कि ब्लॉकचेन की जो नोट्स होती है ना जी उनको डोमेन से कोई खास मतलब होते नहीं है। आप ब्लॉकचेन की जो आरपीसी होती है वो मेन चीज होती है। वो डोमेन से सिर्फ आपको पब्लिक को दिखाने के लिए एक जरिया बना दिया जाता है। हाँ, वो पब्लिक ही इंटरनेट पूछती है ना, इसके वजह से जो है ना क्लियरिफाई करना डेफिनेटली। पड़ता हाँ है। तो मैं जी बता दूं कि आपने चेन आईडी देखते हैं ना 1131, जी जी एक्चुअल में ये हमारा ब्लॉकचेन है। आप जो आरपीसी देखते हैं chain.ozonscan.com, ये जी हमारा मेन ब्लॉकचेन की आरपीसी होती है। तो 1131 ये नंबर मेन चीज होता है, तो इसको डोमेन से कोई मतलब नहीं होती। अगर ozonscan.com अगर आपकी बंद भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि ब्लॉकचेन तो चल रही है। जी, ठीक है। थैंक यू। वेलकम। मेरे साथ सुधीर गौतम। शान सर, मेरा वन क्वेश्चन है। हाँ जी। ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी एंड मेटाओजोन, जो सारे राइट्स हैं इसमें ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के पास हैं, तो मेटाओजोन के जो फाउंडर हैं या सीईओ हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि व्हाइट पेपर पे सारा डिक्लेरेशन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का जो रिजर्व है, राइट और अमेंडमेंट दिया गया है, हम्म। तो वो सारा ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के पास है। तो क्या ये कोई थर्ड पार्टी होती है जो इस ब्लॉकचेन का कार्य देखती है, या कैसा क्या है? तो मेरा क्वेश्चन ये रहता है, तो मेरी तरफ से आप थोड़ा। नहीं, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी जो है यही मेन कंपनी हो गई, यानी यही मेन बेस हो गई। और मेटा ओजोन, ओजोन चेन या लाइक वॉलेट, ये सारे उसके प्रोजेक्ट हैं। तो मेन जो ओनरशिप अगर है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी की है, और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के ही ओनर है, चाहे वो यहाँ पे सीएमओ बैठे हुए हैं केपोर इमैनुअल, ये है। तो एक्चुअल में हमारा ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ही मेन चीज है। ये तो हाँ, हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं 20 जो कि आने वाले हैं, तो क्लियर। एक मेन चीज हमारा मैंने ऑटोमेशन।
मैं इमानु सर का एक मैंने बायोग्राफी थोड़ी देखी थी, तो इनका एक मार्केटिंग डायरेक्टर है या मार्केटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है सर का, वो देखना था हमको। ये चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है प्लस फाउंडर है। अच्छा, फाउंडर भी हैं। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर। मेरे साथ हैं मसलेहुद्दीन साहब। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम सर से क्वेश्चन करना चाह रहे थे। बिल्कुल सर से क्वेश्चन कीजिए, डायरेक्ट कीजिए ना। इमैनुअल सर। Yeah, Hello. thank you. I can hear you. I can hear you. I am Masloudin from India. I want to know about Indian government law income tax 30%. I want to know about all investor in ozone chain. Okay, he said, Sean, can I get me a rephrase of what he was saying? You give all information to India government, yes or not? Okay, if About all ozone chain investor is information, you give India government or not? okay, Sean, can you rephrase what he was saying? Yeah, he is asking that Indian government has the law of 30% taxation on the benefit of any cryptocurrency, Okay. right? So he is asking that can an automation technology provide the details about to the government of India, I think. Okay, okay. Yes, आप क्या जानना चाह रहे हैं? Yes, right question. Okay, Right. that's what he's asking. Yeah. Okay, go ahead. You want to say something? Yeah, he is asking that Indian government has 30% tax for On cryptocurrency proceeds. Yes. If anybody So his question get benefit, then he has to pay 30% tax. So does automation technology provide the information to government of India? Okay, because automation technology, what we are building is decentralized projects. Your Zone Chain ecosystem is a decentralized ecosystem. If that is not in our place, there are third-party projects that helps regulatory authorities to get those informations that will help the government to tax their citizens. So, like we know, these tax regulations differs from country to country. It's not the same in all the countries. So there are third-party projects within the cryptocurrency ecosystem. I think last time some friends in the US who wanted to pay tax on who wanted to file for their tax on the their cryptocurrency activities and proceeds, had to use a third-party project which helps them to generate their transactions and calculate what their tax amount should be to the government. So it is not in the place of Ozone Chain to make such calculations or provide such details to the government. Rather, the government uses, or the individuals uses third-party projects to do that in order to abide to the regulations of their countries. So that is the answer I can give you for now. But if there are other updated informations as regarding to that, I will also let us know in any other of our sessions. Thank you very much. Sean, do you have anything in addition to that?
Yeah, thank you so much. I want to add that there is an exchange over here. So if we go to the exchange, then government can track. Without exchange, government doesn't track. That's why Cool. government is making the law. Or the very last week, Indian government has given a law. It's coming in money laundering systems, right? In that categories of law. So it's our updates in India. So thank you so much. क्या नाम था? मसलुद्दीन साहब, आपको इसका आंसर मिल चुका होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की लॉ जो है वो एक्सचेंजेस तय करती है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम तय नहीं करती है। हर कंट्री में जहां जहां आप ओजोन चेन को यूज करेंगे, उस कंट्री की जो लिस्टिंग अथॉरिटी होती है, एक्सचेंजेस होती है, उनसे उनको रिपोर्टेशन नोटिस ली जाती है और वहां से आपको टैक्स के ऊपर टैक्स करी जाती है। अदरवाइज गवर्नमेंट ऐसा कुछ टैक्स नहीं ले सकती है। Okay, sir. Thank you. वेलकम। मेरे साथ है मोहम्मद अली। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, मोहम्मद अली। आस्क योर क्वेश्चन। Hello, good evening. वेरी गुड इवनिंग। Hello, sir. Good evening. You're Yeah. welcome, Muhammad Ali. Hey, yo, nigga. What's up, man? Very good, very good. You're welcome. या क्वेश्चन पूछे। ओके, ही जस्ट केम टू हाई यू। Yeah, I think you can give me a shout out. मेरे साथ है नवीन, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। Good evening, sir. Good evening, you're welcome. Hello, sir. Hello, sir. Yeah. We welcome you on Zoom. And my question is, when will I get my certificate? Hello. Okay, your question is about our CETIC certificates. जी. Okay. And also when hello, sir. Hello. Sean is hearing you. He's hearing you. Hello. Go ahead. Hello. I'm hearing you. I can hear you. Yeah. And when can I meet your entire team? Okay, if there is no other question, let me answer you on the CETIC certificates. Can you hear me? Okay. Yeah, the CETIC certificate, the last time I was on board, the last time I joined you, I informed us that our code has been submitted for auditing. And as we know, that is a process. It is after the auditing that the CETIC certificate is issued regarding that particular code. And we can assure you that as soon as the certificate is issued, the link will be made available on our CoinMarketCap MarketCap page. So currently, we are awaiting the certification from CETIC. And don't forget that auditing, some of the snippets that we already have access to implies that we have a very secure, innovative code. And immediately the certificate is issued, it will be made public because it is for public consumption to build trust among the community. So there's nothing to be worried about that. Immediately it is available, you will see a notification about that on our CoinMarketCap page. Thank you very much.
Hello. Hello. Yeah, I can hear you. I see you. Yeah, sir. Where can I meet your entire team, sir? I didn't get that particular question. Let's shine through more light to it. He wants to meet your team. When will all the team available on Zoom? Okay, when will I meet your team again on Zoom? Yeah, sir. Yes. Sean, are you talking about meeting your team again on Zoom or live meetings? Yeah, he is talking about the live meetings. He want Okay. to talk to the public also. Okay. I'm very much expectant and looking forward, making plans as well. To meet your team, the Shan team, the Indian team, in the month of April. In the month of April, wow. hopefully. Thank you so much. Thank Thank you you, so sir. much. Thank you very much, sir. Yeah, so hopefully we're going to meet up by then. Thank you very much. We are very excited, sir. That's awesome. Same here. Thank you. Thank It's you. a good news for all of us. Yeah. Thank you. Yeah, very good. Okay, from our team, Mr. Emmanuel, we are inviting you to India in May. Yes. Yeah. Actually, we have organized a conference in Manali. Thousands of people will be there. So we want you to come with your team in May. So please accept our invitation and come to India. That would be a very great pleasure. That would be a very great pleasure. I look forward to it. Yeah, it's the 16th, 17th, and 18th of May, 2023. So please arrange the time. One day at least you have to come for one day. Okay. Yeah, Amashan, your invitation is well accepted. It's well accepted. Thank you. It will be a Thank great you so pleasure much. to Thank you so much. be among Yeah. the Indians. तो गाइस अब आप लोगों की सारी मुरादें पूरी हो चुकी हैं। इमैनुअल भी मान गए हुए हैं आने के लिए, तो अपने टाइम में से बिजी शेड्यूल से कोशिश करेंगे ये कि अपनी टीम के साथ आ जाए। तो और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है? राघवेंद्र सिंह है मेरे साथ में, अभी उनको अनम्यूट के ऑप्शन दे रहा हूँ। राघवेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं राघवेंद्र जी। कोई को-होस्ट अनम्यूट करें खुद से। मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ किसी को, शायद कुछ इशू लग रहा है। शान सर नमस्कार, आपने मुझे अनम्यूट किया है। हाँ जी, नमस्कार। महावीर बोल रहा हूँ मैं सर जी। सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारा बेस प्राइस $100 से स्टार्ट हुआ, अभी शॉर्ट टर्म में 2-3 दिन में जो भी उथल पाथल हुई उसमें हमारा बेस प्राइस तोड़ के ओजोन 90 तक भी गया है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक चीज तो ये है। दूसरा चीज है कि 90 तक गया है तो और भी डाउन जा सकता है, और अप तो जाएगा ही बट डाउन भी जा सकता है। देखिए सर, एक्चुअली यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है ना, 2 तरीके से हो रही है। एक तो P2P से ट्रेडिंग हो रही है
यानी Yes. आपस में लोग ज्यादातर बाई कर ले रहे हैं और सेल करने के लिए केवल एक्सचेंज पर जा रहे हैं। और एक्सचेंज पे जो भी कम्युनिकेशन चल रही है, जो भी ट्रेडिंग चल रही है, वो बाहरी कम्युनिटी की चल रही है। तो बाहरी कम्युनिटी में जब तक के प्राइस लो नहीं होगा, अप नहीं होगा, तब तक बाहरी कम्युनिटी का प्रॉफिट नहीं दिखेगा, राइट। बराबर। और जब तक प्रॉफिट दिखेगा नहीं तो बाहरी कम्युनिटी को अट्रैक्ट कैसे करेंगे आप? इसलिए बराबर। जिगजैग बहुत जरूरी है, राइट। तो इसलिए आप लोगों से मैं यही आज मैं कहने वाला भी था कि अब आप लोग P2P को छोड़ें, डायरेक्ट सीनियर के अकाउंट में पैसे डालने वाले सिस्टम हटा दें। आप लोग डायरेक्ट जाएं और कॉइन को खरीदें। पहले USDT बाई कर ले कहीं से भी, किसी भी दुनिया के किसी भी एक्सचेंज से USDT जैसे ही बाई हो सकता है, चाहे वजीरेक्स से हो सकता है, यूनाइटेड एक्सचेंज से हो सकता है, चाहे बाइनेंस में आपको जहां सहूलत लगती हो वहां से आप जा करके USDT परचेज कर लें और USDT को लेकर के आकर के बाइनेंस खरीदें। आपको भले ही लगता होगा कि आपका सीनियर 1 रुपए आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दे देगा, या आपको ये लगता होगा कि टाइम में आपका बच गया, लेकिन इस टाइम के बचाने के चक्कर में आपको रेट का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि आज अगर 100 रुपये में आप खरीदेंगे ना और कल 102 में खरीदेंगे तो परसों 104 में हो जाएगा वो। कल 104 में खरीदेंगे तो 110 में होगा, 110 में खरीदेंगे तो 120 में होगा। लेकिन अगर आप आदत डाले रहे हैं कि नहीं मुझे 100 में ही चाहिए, तब तक वो नहीं हो पाएगा। तो रेट बढ़ाने के लिए बाहरी कम्युनिटी के अलावा हमारी जो इंटरनल कम्युनिटी है उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अब आप लोग कोशिश करें कि जा करके अगर आधा भी कॉइन खरीदना हो तो एक्सचेंज खरीदो, राइट। यानी बायर पे जाए, ठीक है। सो जब सीनियर्स लेते हैं तो सीनियर क्या करते हैं, वो टाइमिंग देखते हैं कि कब रेट गिर रही हो, उस टाइम में जाके वो खरीदते हैं। बट इससे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए रेट तो पंप हो जाता है, लेकिन फिर रेट गिर, लेकिन सब लोग बाइंग अगर करने लगेंगे तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। ओके तो ओके अभी बाहरी कम्युनिटी में ऐसा चल रहा है, बट हमारी कम्युनिटी जैसे उधर बिल्डअप होगी। अभी हम लोगों ने P2P बिल्कुल ही बंद कर दिया है, बिल्कुल ही एकदम से। आज से मैंने अनाउंसमेंट ही कर दी कि P2P करनी ही नहीं है, जो भी करने हैं एक्सचेंज पे करें। तो आज की ज्वाइनिंग कल लगेगी चलेगी, लेकिन रेट बढ़ेगा इससे, और रेट 100, 150, 200 तो चला जाएगा 1 आध महीने के अंदर में। जितनी बड़ी रेवेन्यू P2P में हो रही है उतनी बड़ी रेवेन्यू वहां पे अगर होगी तो बहुत बड़ी, आप 2 गुना हो जाएगी रेट, समझ गए ना। अब आप लोग इस चीज पर ध्यान। Okay. One more thing, Emmanuel sir, I am Mahavir from India. Sir, we are very excited to meet with you. So you are really coming, your team in India, May 2023. So, sir, we are seriously so excited for meet you. So again, Okay, I but- invite you, come India and join Indian people. Okay, Mohammed, that would be a great pleasure. That would be a great pleasure, and I look forward to that moment. Thank you. Okay, sir. Okay, thank you. Yeah. हेलो, हाँ सांसर, हाँ जी, राघवेंद्र सिंह बोल रहा हूँ इधर की यूनाइटेड एक्सचेंज पर अगर आप स्टेकिंग के लिए कॉइन खरीदने जा रहे हैं तो उसका कीमत 9,000 रुपया लग रहा है, और वहीं स्टेकिंग माइनिंग का कॉइन आप बेचने जा रहे हैं तो 7,000 रुपये में बेचना पड़ रहा है। तो इसको आप लोग थोड़ा सुधार करवाइए, नया को बताने में बहुत दिक्कत हो रहा। एक्चुअली अब कॉइन मार्केट कैप पे जो भी ट्रेंड आ रही है ना वो बिटमार्ट से आ रही है, तो अब आप लोग वहां पे मूव कर जाए। और सर और भी कहना है कि बीटमार्ट पर मेरा कॉइन जो है सो ये अकाउंट हैक हो चुका है, नंबर दूसरा दे रहा है। तो इलियास सर को बोला था तो ये नहीं हुआ, तो थोड़ा कुछ ऐसा मेल है तो बोलिए, तो मैं अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भेजता हूँ, वो सब क्लियर करवा दीजिएगा तो सबके लिए फायदा होगा। हैक हो गया? हाँ, वो इसका टेलीग्राम पर मांगा था, मतलब कि मोबाइल नंबर, और ये एक दिन भेजा था मैं 0.30 कॉइन भेजा था, तो उसके बाद में OTP सब मांगा। तो ईमेल आईडी पर जो OTP आया था मैं उसको शेयर किया था, तो मोबाइल नंबर अभी वो दूसरा बता रहा है और मेरा अकाउंट खुल नहीं रहा है।
तो ये थोड़ा मतलब कंपनी से आप लोग जो है सो मतलब कि इनके साथ क्या हुआ कि थर्ड पार्टी से एडवाइस लेके खोल रहे थे, जिसके वजह से इनका जो ईमेल आईडी तो इनका है, मगर मोबाइल नंबर थर्ड पार्टी उसने अपना दे दिया। तो उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही हम इनको बताए हैं कि आप जो है ना न्यू ईमेल आईडी से अपना एक अकाउंट बना लीजिए। वो तो हैक हो गया है। अब वो मोबाइल नंबर पे, चूंकि उनका मोबाइल नंबर है, तो जब भी कोई चीज नहीं डालना हो तो ओटीपी उनका आएगा। इलियास सर, वो जो मतलब कि दे रहे हैं ना, आईडी दे रहे हैं, तो उस पर मेल कर लिख रहा है कि एक आईडी से एक ही अकाउंट बना सकते हैं। आधार कार्ड तो मांग रहा है ना, तो आधार कार्ड तो पहले उसमें मैं दिया था, तो अभी दूसरा अच्छा। किसी भी ईमेल आईडी से खोल रहा हूँ, तो यही बोल रहा है कि एक आईडी से एक ही अकाउंट खुलेगा जो पहले दिया जा चुका। वो बोल रहा है कि ऑलरेडी यूज बिफोर अदर अकाउंट। तो KYC मोबाइल हो नंबर चुकी आपकी? जी सर, केवाईसी सब हो चुकी थी। हाँ, तो सीधा सीधा आप क्या करें कि नए ईमेल आईडी से, ईमेल आईडी तो आपका सही है ना, मोबाइल नंबर गलत है ना? हाँ, हाँ, तो आप अपना ईमेल आईडी से contact@bitmart.com का जो है ना, support@, उसमें मेल करें मेल अपना किया हूँ आईडी मैं के साथ उनको, में। मेल किया हूँ मैं अपने उनको, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं उधर से। इसके लिए बोला ना कि आप लोग सीनियर पर्सन है, तो डायरेक्ट उनके सीएमओ से, सीईओ से, एमडी से बातचीत अगर होता है, कुछ ऐसा कीजिए कि ठीक है, जिसका हैक किया उसका। ठीक है, आप मुझे फॉरवर्ड कर देंगे अपना ईमेल आईडी, अपना वो उसका बिटमार्ट का एड्रेस वगैरह मैं भेज दूंगा आगे। ठीक है, इमैनुअल से बात कर लेता हूँ यहीं पे। ठीक, थैंक्स ओके। Mr. Emmanuel, there is a problem with a person that he wants to change his mobile number in Bitmart, but Bitmart is not supporting. So he wants you to forward from your side. So is that okay? So Bitmart supports? Yeah, Bitmart support is not providing the support. So he wants us for management level to contact to the Bitmart. So Okay, is this possible? Okay, what will happen is let him drop you the details. I will relate with the Bitmart support and find out if it is a possibility within their exchange. If it is something that can be handled, it will be attended to immediately. Yeah, thank you so much. Thank you so much. आप भेज देना, मैं इमैनुअल सर को भेज दूंगा। ओके, थैंक्स। Okay. MA. हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर। Very Good good. evening, you're welcome. हाँ सर, मेरा सवाल ऐसा है, ये जो सर्टिक होता है, ये सर्टिक का ऑडिट होता है, मतलब ऑडिट किस चीज का होता है और इसका ब्लॉकचेन के लिए इम्पोर्टेंट कितना है सर्टिक का? मतलब सर्टिक क्या होता है यही मालूम नहीं बहुत सारे लोगों को, मतलब हमें भी ज्यादा पता नहीं है सर्टिक के बारे में। तो सर्टिक का ऑडिट होता है, मतलब क्या होता है, और सर्टिक का इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या मायना रखता है? Okay. मैं बता दूं कि सर्टिक एक ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो DeFi एप्लीकेशंस के ऊपर में ऑडिट करती है। वो ब्लॉकचेन के ऊपर में ऑडिट करती है, टोकन्स के ऊपर में ऑडिट करती है। यानी जो भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स है उसके ऊपर ऑडिट करके कोड को चेक करके बताती हैं कि ये कोड कितनी ऑथेंटिक है। यानी इसमें अगर डिसेंट्रलाइज कही गई है तो वाकई में डिसेंट्रलाइज है या किसी तरह का इसमें लूप होल्स है जो पब्लिक के लिए नुकसान है, वो हैक हो सकती है। ये सारी चीजें, यानी ओनर ने कोई इस तरह का लूप होल तो अपने लिए नहीं रखा हुआ है, तो इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। और ये वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसेंट्रलाइज पब्लिक के लिए बनाई गई है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के लिए बनाई गई है, जो कि वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है किसी कंपनी के ऊपर, तो उस पर भरोसा कर लिया जाता है। क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में लोग ऑडिटर्स बैठे होते हैं जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं बहुत बड़े लेवल के, और वो लोग उसको ऑडिट करके फाइनलाइज करके देते हैं कि वेदर योर प्लेटफॉर्म इज राइट और रॉन्ग। तो पहली ऐसी सिस्टम है जिसमें से कम आपको ये पता चलता है, मान लो कि आपको कोड पढ़ने आता नहीं है, मुझे कोड जानने नहीं आता है, और मुझे कोई आकर बोल देता है कि ये डिसेंट्रलाइज है, तो मैं कैसे मान लूं कि वाकई में डिसेंट्रलाइज है?
हमें कोई भी कुछ भी थमा के चला जाएगा डिसेंट्रलाइज के नाम पे, उसे हमें तो आना चाहिए ना जानने के लिए। तो इसके लिए एक थर्ड पार्टी बना दी गई है, एक कोर्ट बना दी गई समझ लीजिए, क्योंकि डिसेंट्रलाइज में तो कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी होती नहीं है, लेकिन एक अलग से अथॉरिटी बनी हुई है जो कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। और उनकी जेन्युइनिटी इसी से पता चल सकता है क्योंकि हमारी जो सर्टिक है वो बाइनेंस की पार्टनर है। इसके अलावा दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े जो सब पॉलीगॉन्स हो गए, इथीरियम हो गए, सोलाना हो गए, ये जो टॉप की जो करेंसीज हैं, इन सब ये सबके सब इनके स्पॉन्सर्स हैं और सभी का इन्होंने ऑडिट किया हुआ है। इनकी जो भी प्रोजेक्ट्स है उसमें कोई उंगली नहीं दिखा सकता कि जो आप लिख रहे हो वो आप हो कि नहीं। यानी आपका जैसा भी है वो बता देगा, सही है तो भी बता देगा, गलत है तो भी बता देगा। तो चूंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर आप अपना कोड दिखाइए, आपकी जो मैकेनिज्म है वो दिखाइए। तो चूंकि हमारा कोड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड है, यानी कि बहुत ही मेहनत के बाद बनी हुई है। ये डायरेक्टली किसी को अभी नहीं दिया जा सकता। अगर अभी हम लोग किसी को अगर दिखा देते हैं, टोटल सोर्स कोड उठा करके अगर दे देंगे तो हमारी कॉपी कल ही के डेट में बन जाएगी, राइट। तो जितने भी बड़ी ब्लॉकचेन्स होती है वो अपनी कोड्स वगैरह कुछ दिनों के बाद ही शो करती है, साल 2 साल के बाद ही शो करती है पब्लिक में। लेकिन उससे पहले वो ऑडिट करा करके पब्लिक को कम से कम इतना जरूर आश्वस्त कर देती है कि मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, मुझे वर्ल्ड की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई कर दिया है। समझ गए ना? ऐसे तो आप हर बंदा को दिखाते रहेंगे, हर बंदा चेक करके बताएगा कि आपका गलत है, वो कहेगा आपका गलत है, तो आप कैसे वेरीफाई करोगे कि वो जो बैठा हुआ जो बंदा है, जो सपोज कोई डेवलपर आपके पास बैठा है, वो आपके कोड को ऑडिट करके वो आपको बताए कि इसमें ये खामियां है या ये अच्छाई है। तो कैसे आप समझ पाओगे? इसके लिए दुनिया की जो वर्ल्ड जो टॉप मोस्ट ऑडिट फॉर्म है, नंबर 1 पे सर्टिक आती है, उसी से करा लिया जाता है ताकि बाकी लोगों को ये सवाल करने का मौका ही ना मिले। और जैसे ही सर्टिक का लाइसेंस आप डेवलपर के सामने भी रखेंगे, वो वहीं पे आपको बोल देगा दिस इज द बेस्ट, और उससे आगे वो कह ही नहीं सकता है। इसके लिए ये चीजें बनाई गई ताकि यहाँ पे पब्लिक को सिक्योरिटी मिल जाती है कि यहाँ कंपनी उनके साथ चीटिंग नहीं कर रही, यानी जो कह रही है वो कर रही है। यानी कि आपका खुद का अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो है, अगर आपका खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ओनर का सिर्फ एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो भी कहेगी हाँ एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। आपको वो भी बताएगा कि हाँ यहाँ पे ओनर कौन है, फंड कौन निकाल सकता है, ये चीजें वो बताएगा। सब चीजें वो आपको ऑडिट में करके तब जा करके लिखती है कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। जहां पे लिख देती है डिसेंट्रलाइज नहीं है, वहाँ वहीं से सीधे खारिज हो जाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों का आंसर मिल गया होगा। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। कर दो। आशीष ठाकुर। आशीष अजय सर। हाँ जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। आशीष जी क्या जानना चाहते हैं? सुब्रत पान। सुब्रत जी क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। हेलो, Good evening, you're welcome. आवाज क्लियर है सर जी? आ रही। सर जी, मेरी यही क्वेश्चन है, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका जो बिडमार्ट एक्सचेंज है ना, बिडमार्ट एक्सचेंज प्रॉब्लम है, उसका ईमेल आईडी सटीक डाल दिया, फोन नंबर सटीक डाल दिया, ठीक है, उसका जो आधार कार्ड सब कुछ डाल दिया। फर्स्ट जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, सेकंड वेरिफिकेशन वो अंडर मेंटेन रिव्यू हो गया, मेरी बार बार चेक कर रहा है। बिडमार्ट एक्सचेंज जो है ना उसका प्रॉब्लम चल रहा है, मेल किया सब कुछ जो प्रॉब्लम हो गया। 1 महीना हो गया बिडमार्ट एक्सचेंज नहीं, मेरी वेस्ट बंगाल को मेरी टाउन में जिसमें लीडर है उसका सब कुछ सॉल्यूशन नहीं हो गया। उसको आधार कार्ड डाल दिया, उसको जो फोटो स्क्रीन शेयर कर दिया, सब कुछ डाल दिया,
उसका अंडरमेंट रिव्यू चल रहा है, उसका विथड्रॉल प्रोसेस नहीं हो गया, उसका क्या सॉल्यूशन है बताइए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती उन्होंने करी होगी। पहली चीज की आधार कार्ड जब भी डालें तो आप लोग वो कार्ड वाली आधार कार्ड ही डालें, जो एटीएम कार्ड की तरह जो पीवीसी कार्ड में बनकर आती है वही डालें। लेमिनेटेड नहीं चलेगा, पहली चीज का ध्यान रखें। अगर आपको आधार कार्ड, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस का यूज कर लें, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पासपोर्ट है उसको यूज कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन सब में आप ध्यान रखें कि पीवीसी कार्ड वाला ही करें। अगर आप बिना पीवीसी वाला अगर करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। राइट, ईमेल आईडी को देख ले। और कई बार लोग मोबाइल नंबर जब डालते हैं तो वहां पे बाय डिफॉल्ट +1 आता है, तो +1 को वहां से हटा करके +91 को सिलेक्ट करके तब आगे ईमेल आईडी को वेरीफाई करें। ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना बेहद जरूरी है। सॉरी, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना बेहद जरूरी है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे तभी आप विड्रॉल कर पाएंगे। और अगर फिर भी कुछ इशू आती है तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करें और आप अपना डिटेल्स को भेजें, मैं आगे बात करूंगा। अगर कुछ इशू अगर किसी के साथ हो रही है, ऐसा सबके साथ नहीं हो रही है, अगर एक आध पर्सन के साथ अगर हो रही है तो कुछ इश्यूज रही होंगी, कुछ इशू तो जरूर रहा होगा टेक्निकल, तो उसको सॉर्ट आउट करा दिया जाएगा। है और कुछ सेकंड क्वेश्चन है, उसका जो ओजोन का मान लीजिए एक ओजोन का आईडी है, ठीक है, उसका 365 दिन जो आपको वैलिडिटी बताइए, उसका 365 दिन बाद क्या हो गया? अब कि फिर ओजोन डाल दिया ना, क्या सिस्टम हो गया? तो माइनिंग प्लेटफॉर्म 365 दिन बताइए, 365 दिन का बाद क्या हो गया? नहीं आपकी आवाज शायद आपका क्वेश्चन ये है कि 365 दिन के बाद क्या होगा, राइट? 365 दिन 365 दिन के बाद आपका अनस्टेक हो जाएगा, आईडी सेम रहेगी, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, आपकी पूरी टीम रहेगी। 365 दिन के बाद में आपको वो जो 70% कॉइन है वो रिटर्न आ जाएंगे आपके एड्रेस पे। अब उसको आपको दोबारा से स्टेक करेंगे, जितना कॉइन फिर दोबारा से करेंगे, फिर नए सिरे से आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। फिर आगे का 365 दिन तक के लिए वो लॉक हो जाएगा और 365 दिन तक आपको इनकम आती रहेंगी। ठीक है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन है सर जी, आप जो माइनिंग प्लेटफॉर्म बात कर रहा है रियो आर का, उसका फर्स्ट जो अचीवर है स्टार रैंक, उसका 5 ओजोन जो बताइए आपको, हाफ ओजोन का 5 ओजोन 0.5 ओजोन, उसका तो 0.5 ओजोन नहीं आ रहा है, 0.47 आ रहा है, उसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन नहीं, वो सही है, आपको 0.5 ही आता है, बट आपको हर तरह के जितने भी ट्रांजेक्शन जो आते हैं इनकम में, उसमें से 5% डिडक्ट हो जाता है। तो 0.5 का अगर 5% डिडक्ट कर देंगे तो 0.74 हो जाता है। 0.5 का 5% डिस्काउंट करेंगे ना, उतना ही आपको आता है। तो हर तरह के जितने भी इनकम आती है ना, उसमें आपको 5% तो डिडक्ट होते ही है। 0.475 आता है। ठीक है, तो मेरे साथ है गणेश संखे, सॉरी पता नहीं क्या नाम है। गणेश जी पूछे, क्या कहना चाहते हैं? हेलो, हाँ जी। गुड इवनिंग, आई वांट टू टॉक टू विथ मिस्टर इमानुएल सर। Yes, yeah. Okay, I'm here. Hi sir, how are you? I'm good. Sir, very nice concept, and we very pleased to talk with you. So my one small question is, hello? Go ahead, I'm hearing you. Thank you. Okay. Sir, my one question is, what is accepted rate in 1 year of Ozone coin? What is the expected rate of ozone coin in 1 year? In 1 year. Okay. Price is if you understand the way economics works,
price is determined by the forces of demand and supply. So currently, like you know, Ozone Chain is trading in a publicly accepted cryptocurrency exchange like Bitmax. Also, we are looking forward to over time to list in other exchanges, which means it is available for the public to trade at whatever rate that is acceptable within them. You understand me? So companies do not pay attention to price speculation or prediction. But one thing that you need to understand if you're familiar with the cryptocurrency ecosystem is that when there is a limited supply, it most of the time or always will result to increase in value. And Ozone Chain has one of the smallest quantity of supply. We just have 10,000 maximum supply, and currently we have an initial supply of 50,000. We have a bond mechanism of 0.01%, which is going to continue until 50% of that supply is bond. So what it is going to result to is definitely an increase in the value of ozone. But the question of predicting the price or speculation of what it will be in 1 year, company do not go into that. I hope that answers your question, sir. Yeah, that's great, sir. Okay, thank you very much. Thank you for speaking. Yeah. So over time, you can experience 2x, 3x, 5x, 10x. As much as there is demand in the market, you're going to see triple increase in value. So that is it. Thank you, sir. Thank you very much. You're welcome. या मेरे साथ है आशीष ठाकुर। अब चूंकि टाइम खत्म हो रहा है तो लास्ट क्वेश्चन आपसे ले लिया था। आशीष जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, गुड हाँ जी इवनिंग सर। सर, मेरी आवाज आ रही? आ रही है। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, बस एक नॉलेज शेयर करना था। अभी जो इंस्टाग्राम का सर ने बताया कि अकाउंट हैक हो गया और बिटमार्ट का अकाउंट हैक हो गया सर का, तो जो अभी ऑनलाइन पे काफी देखने को आ रहा है और सुनने को भी आ रहा है। आज मेरे एक मित्र हैं संदीप जी, उनका भी इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो चुका है। तो मैं सभी से ये बोलना चाहता हूँ कि हम जो भी सोशल सर्विस साइट को यूज करते हैं, थोड़ा सोच समझ के अपनी साइट को यूज करें, और कोई भी रिस्पॉन्स अगर वहां से आता है तो क्या देना है हमें, क्या नहीं देना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति की लालच के कारण हमारी पर्सनल जानकारी लोगों को दे देते हैं और उसके कारण हमें नुकसान को भुगतना पड़ता है। तो वो तो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं हमें, और कुछ प्रलोभन ऐसे सपने दिखाते हैं कि हमारी प्रोफाइल को एडिटिंग करवा देते हैं या पैसे की डिमांड करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी ओजोन टीम इस चीज से सतर्क रहें। बस यही मैसेज मैं टीम को देना चाह रहा था। थैंक यू। थैंक यू सो मच आशीष जी, आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया लोगों को। अब क्वेश्चन आंसर का राउंड अब यहीं से खत्म की जाती है। अब क्योंकि टाइम ओवर हो रही है, 2 घंटे की मीटिंग रखी गई थी, तो लास्ट में अगर को होस्ट में से कोई कुछ बताना चाहते हैं तो एनी को होस्ट, आप लोग को बस 2 मिनट मिलेंगे। आप लोग कुछ अगर बोलना चाहते हो तो अपने टीम को। कोई को होस्ट अगर कुछ बताना चाहते हैं तो आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं अपने टीम के लिए। ग्रेट, नमस्कार। नमस्कार। हमारे सभी फाइटर्स, ओजोनियर फाइटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज का जो डेट है ऐतिहासिक रहा। कुछ नई चीजें का अपडेट हमारे मिस्टर इमेनुअल ने दिया है। इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम इंडियन एक वर्ल्ड वाइड की तरफ बिजनेस लेके आगे जा रहे हैं क्रिप्टो के अंदर। राइट नाउ मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बट मैं एक क्रिप्टो का छोटा ट्रेडर था, आज एक ओजोन के प्लेटफॉर्म पे एक माइनर बन करके एक ऐसा माइनिंग प्लेटफॉर्म मुझे मिला जो आज हमारे माइनिंग की वजह से
जितने भी बड़े मार्केट है उसके हम माइनर के अकाउंट ओपन कर रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिटकॉइन का भी माइनिंग करने का इच्छा था, बट वो प्रोजेक्ट हम नहीं लगा पाए जो ओजोन ने मुझे दिया। तो मैं यही संदेश दूंगा कि ये माइनर बनना बहुत आसान काम नहीं है। आप जो माइनिंग कॉन्सेप्ट को अपनाया है, आप एक माइनर बने हो। मैं यही संदेश दूंगा कि इंडिया के हर एक व्यक्ति को माइनर बना दो आप। बेरोजगारी यहाँ से टल जाएगी, चाहे वह किसी भी क्रिप्टो कॉइन का करे माइनिंग, बट माइनर बना दो बना दो बना दो। और छोटा इन्वेस्टमेंट हो या बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, हम सब एक बड़े अवसर की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत से अभियान की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी इंडिया ने पूरे दुनिया को यह बताया कि क्रिप्टो करेंसी को हम एक लीगल प्लेटफॉर्म की तरफ ले जा रहे हैं। तो हम पहले स्टेज पर तैयार हैं अपने पूरे कम्युनिटी को लेकर के। मैं अपने सभी टीम को, सभी ओजोनियर्स को धन्यवाद देता हूं कि बने रहें। अगले 365 दिन में के बाद जो जोन कर दिखाएगा, जो क्रिप्टो के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तो बातों के साथ आज की वाणी विराम देता हूं। थैंक यू सो मच नसीम साहब, आपने बहुत अच्छे से बताया। और कोई को होस्ट कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज आ जाएं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। You're welcome, sir. You're welcome. जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब रेट डाउन हो तो हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी समझ के मैक्सिमम लोगों को कॉइन स्टेक करवाना है, और बढ़ जाए तो भी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए ये नेचर है, गॉड गिफ्टेड है, समझ लीजिए इस प्रोजेक्ट का। किसी भी कॉइन का अप और डाउन अपॉर्चुनिटी देता है हम लोगों को, और अपॉर्चुनिटी समझ के हम लोग दोनों कंडीशन पे अपना बिजनेस को प्रमोट करें। चलिए, थैंक्स। थैंक यू सो मच। या और कोई को होस्ट है, कुछ बताना चाहते हैं अपने टीम को? सो फ्रेंड्स, आज का जो मीटिंग है बहुत ज़बरदस्त रहा। आप लोग यहाँ पे मौजूद हुए, सिस्टम को देखे, समझे, प्लान प्रेजेंटेशन भी देखे। अब हम लोगों को यहाँ से स्ट्रेटजी बनानी है कि हम लोग यहाँ से मैक्सिमम इनकम कैसे कर सकते हैं। अभी आप लोगों को ऑलरेडी ऑफर दिया जा चुका है मनाली के लिए, तो उस ऑफर को आप लोग अचीव करें। और मनाली में मैक्सिमम लोग, यानी कि हजारों की गैदरिंग करनी है। ऑलरेडी इमैनुअल सर ने हाँ कर दी है, तो अब हम लोगों के लिए अब सोचने की किस बात है। दिखा देंगे हम भी इंडिया में कि बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, राइट। तो आज से हम लोग लग जाएं, पूरी शिद्दत से लग जाएं, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि हमारा ही बेनिफिट है। हम अगर दूसरों को दिखाते हैं तो प्रॉफिट अपना ही होता है। तो मैक्सिमम लोगों तक अब लोग जाएं। और आज आई थिंक पहले से क्वेश्चन बहुत कम हो गए। पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे। पिछली मीटिंग में इमैनुअल सर ने से बहुत सारे क्वेश्चन करे गए थे, लेकिन आज लोग समझदार हो गए हैं, चीजें जान गए हैं, तो आज बहुत ही कम क्वेश्चन आया है। बट मैं ये कहता हूँ कि ये क्वेश्चन रहेंगे ही नहीं, क्योंकि सिस्टम ही इतना जबरदस्त है कि ऑलरेडी सारे क्वेश्चन का जवाब मिल ही जाती है। तो पहली बार दुनिया में मिला जहाँ पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम, खुद की माइनिंग प्लेटफॉर्म, खुद का एसेट खुद ही के पास। अभी तक जितने भी कंपनीज रहे हैं वो आपसे बोलते हैं कि मैं आपको माइनिंग करा के दूंगा, लेकिन वो पहले से कॉइन बना के रखते हैं। दूसरी चीज, वो आपको कॉइन भेज देते हैं खरीदने के लिए, आप मार्केट से खरीदते हैं तो अपने अकाउंट में मंगा लेते हैं, यानी आपके एसेट को अपने यहाँ लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो एसेट की वजह से वो लोग मार्केट को कभी भी डंप कर देते हैं, यानी जीरो पे लेके चले जाते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स, इसका सॉल्यूशन दे दिया ओजोन ने। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, वो हमें इस प्लेटफॉर्म से नॉलेज के थ्रू आई है। और इसलिए आपको कहा जाता है कि हमेशा मीटिंग में जरूर आए,
कब कौन सी बात, कौन सी नई चीज हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए और आपके गेस्ट के लिए वो ब्रह्मास्त्र बन जाए, और आप भी जब भी जाए तो आपकी सेल्स क्लोज हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले उस चीज को समझे, जाने। राइट। तो सर क्योंकि वक्त भी हो चुका है। सर सर आई वांट, मैं चाहता हूँ, इमानुअल सर, गुड इवनिंग। Thank you very much, sir. Welcome. सर मैं चाहता हूँ कि आप समापन करें, और पूरे मोटिवेशन के साथ हम आपको सुनने आए हैं, हम कुछ बोलने नहीं आए हैं। तो सर आप पूरा मोटिवेशन के साथ जो है ना, पूरा इंटरनेशनली चीज को लेके थोड़ा सा 5 मिनट हम लोग को कुछ बताइए। Yeah, Mr. Emmanuel, he wants you to close the meeting by motivating the public. Any announcement is there, you can announce, or if it end, then close the meeting by your speech. Please. Okay. Thank you very much. Thank you very much. There is okay. One of the announcements we'll have here is that our main Telegram chat is now live. A Telegram community different from the channel. I know many of you possibly were in our Telegram channel, but on the channel you are not able to interact with our moderators and some of us. So the main Telegram channels where you can interact with other participants in your Zoom community is now live and available to the general public. So Shan, you will have to share that to your community after the meeting. You have to share that with your community. Thank you after so the much. meeting. So Thank you so that much. We are- means now one of the things this helps you to understand is that progressively we are advancing as an ecosystem. And we are now coming to the public domain. That means that should inspire more confidence in the minds of all our participants. So what you are seeing now is that we are getting gradually open to the public. You now have the opportunity to interact with other community members, ask your questions, scrutinize what we are doing, and throw on your suggestions and so on and so forth. So we are coming to the public domain, and that should inspire confidence. There is no team that we want to come to the public domain for fun and all of that. That means the Ozone Chain Ecosystem Automation Technology and its team means business. And we are here for the good of everyone who is trusting us and participating in our products. So once again, you are very much early in the cryptocurrency ecosystem. Position yourself and make maximum advantage of the times and innovation that are brought to you by the Ozone Chain ecosystem. Thank you very much. And I would not fail to say that I'm looking forward to meeting up with you at the scheduled time. Thank you very much, Shan. And thanks to all your co-hosts, the various team heads in this place. I bring you warm greetings from our entire team and from our founder. So we look forward to meet you as scheduled. Thank you very much. Thank you so much once again, Mr. Emmanuel, to join this meeting. We got lots of things we learned from you. So thank you from my all teams. You're welcome. You're welcome. So let's end the meeting. Good night.